Hello students. Last time we learned the basic principles of genetic engineering, that is the basic steps that are done in this techniques in gene cloning. So in this I told you that this one, we need the source of the desired gene, and the second one is we need to multiply this gene in the another host organism. So what we do, we restrict we this cut the our desired gene from one this ADNA, and then we transfer it into the host organism for multiplication. The source of the DNA can be plant, fungus, bacteria, and animals. So once this DNA it is isolated, then the next step is to find the desired gene. Now the desired gene, it can be cut with the help of restriction endonucleases. Now this enzyme, it will cut this DNA fragment DNA into the small fragments. Now these fragments, they can be separated by the technique called agrosgel electrophoresis. Now with the help of this technique, our desired gene can be isolated. Clear? So next, now we need to insert this desired gene into this plasmid or vector, or this vector we can say it is a vehicle. Clear? So when we insert this gene into a vector, now after that we need to make its copies. जिसको नहीं समझ आया वो पुरानी वाली जो वीडियो है वो भी देख सकता है. क्लियर? सो वी कैन मल्टीप्लाई दिस जीन with the help of either in vitro gene cloning or in vivo gene cloning. In vivo gene cloning, what we do, we multiply this DNA inside the host chromosome, and usually used host chromosome is E. coli. After this DNA, this gene, it can be expressed in the form of protein. Clear? So once the expression it takes place, the next step is to do its large scale production with the help of bioreactors, and after that the purification of this product can be done with the help of technique called this downstream processing. Clear? So there are I said there are 8 steps. पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि there are 8 to 9 steps that we do in this general steps of genetic engineering. So firstly what we do, we take this source DNA, that is a plant, fungal, and bacteria, these cells, these different kinds of cells. Now see, now we take different types of cells. That is why we take different types of cells, because from where we need to isolate our DNA. Clear? So here you all know that the cell has a covering called cell membrane, and outside the cell membrane, cell is covered with this cell wall. Clear? Now plant cell wall is made up of cellulose. Plant की जो cell है, that is made up of cellulose. Fungus cell is made up of chitinase. Bacterial cell is made up of peptidoglycan. It is made up of peptidoglycan. And animal cell, it has no cell wall. Only the animal cells are the cells that are without cell wall, that lacks cell wall, whereas the other cells like plant cells, fungal cell, and bacterial cells, they are made up of cellulose, chitinase, and peptidoglycan. Now this is not chitinase, it is made up of chitin. Clear? मैंने आपको बताया था जिसके पीछे एज लगा हो, सफिक्स एज हो, दैट इज एन एंजाइम. सो दिस सेल्यूलोज इट कैन बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेल्यूलेस. Clear? This chitin is digested with the help of enzyme chitinase, and this peptidoglycan can be digested with the help of enzyme lysozyme. क्लियर? सो आपने डीएनए जो है, डीएनए को आइसोलेट करना है. सो आपको क्या चाहिए? सबसे पहले सोर्स चाहिए. सोर्स कौन कौन सा चाहिए? सोर्स कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल सेल हो, फंगल सेल हो, या बैक्टीरियल सेल हो. क्लियर?
आफ्टर दैट आपको मिल गया सोर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि जो इसकी सेल है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का बना हुआ है। इनका जो स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर है, उसके बाद सेल के बाद आपको पता है सेल वॉल होती है। सिर्फ एनिमल सेल एक ऐसा सेल है जिसके बाद सेल वॉल एब्सेंट होती है। जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल जो है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज को हम डाइजेस्ट करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेल्यूलेस। काइटिन, chitin is also a polysaccharide that can be digested with the help of enzyme chitinase. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, and this peptidoglycan it can be digested with the help of enzyme lysozyme, whereas there is no cell wall present in case of animal cell, and this step can be omitted in this. So for example, this is the structure of a cell. This is cell wall, ये बाहर जो है दिस इज सेल वॉल, और दिस वन इज ए डीएनए। मतलब आपको यहाँ से सारा पार हो गया। आपको ये चीज़ कौन सी चाहिए, आपको ये चीज़ चाहिए डीएनए। आपको ना ये चाहिए ना ये चाहिए ना मेम्ब्रेन्स चाहिए, व्हाट यू नीड इज डीएनए। सो इसमें आप क्या करते हो कि फर्स्ट यू डाइजेस्ट दिस सेल वॉल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। सो फर्स्ट स्टेप इज एंजाइम डाइजेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट की जो सेल वॉल है इट कैन बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलेज। सो एंजाइम डाइजेशन इज डन टू ब्रेक सेल वॉल। क्लियर। सो सेल वॉल इसकी तोड़ दी। अब सेल वॉल जब तोड़ दी तो हमारे पास क्या रह गया, ये वाला स्ट्रक्चर। ये सेल वॉल तोड़ दी हमने विद द एंजाइम डाइजेशन। नाउ दिस स्ट्रक्चर इट कैन बी broken down by changing the osmolarity of the cell। अब क्या किया जा सकता है कि जो भी आप सेल वॉल तोड़ने के बाद जो भी आपके पास स्ट्रक्चर आया, यू विल डिप इट इनटू दिस हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखो, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब आप उसको डिसॉल्व करोगे तो क्या होगा कि जो सेल की मेम्ब्रेन है इट विल बर्स्ट। ध्यान से सुनो कि सेल की आपने ऑस्मोलैरिटी चेंज की, और अगर जब उसको आप हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा कि जो सेल के कंटेंट्स हैं दे विल कम आउट। क्लियर। अब सेल के कंटेंट्स जो है वो कौन कौन से आए बाहर, ये ट्यूब है। अब इसमें क्या क्या आया, डीएनए, ठीक है, देन आरएनए एंड प्रोटीन्स। क्लियर। डीएनए भी आया, आरएनए भी आया, प्रोटीन भी आया। लेकिन आपको क्या चाहिए, व्हाट यू नीड, यू ओनली नीड डीएनए। आपको ना आरएनए चाहिए ना आपको प्रोटीन चाहिए। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि जो आरएनए प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट किया जाता है बाय द एडिशन ऑफ द एंजाइम्स आरएनएज एंड प्रोटीएजेस। अगर जो आरएनए एंजाइम्स हैं दे डाइजेस्ट आरएनए, ये आरएनए को ख़त्म कर देंगी, और ये जो प्रोटीएज एंजाइम्स है दे डाइजेस्ट प्रोटीन्स। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया, नाउ हमारे प्योर प्रेपरेशन आ गई ऑफ डीएनए। अब जब प्योर प्रेपरेशन हमारे पास डीएनए की आ गई, जो डीएनए है इट कैन डिजोल्व इन वाटर। डीएनए डिजोल्व हो जाता है वाटर में। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है। सो इसलिए कि उसमें पूरा वो डिजोल्व ना हो जाए तो व्हाट वी ऐड चिल्ड इथेनॉल। ऑब्वियसली जो चिल्ड इथेनॉल है इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज़ लेसर देन वाटर। सो उससे क्या होगा कि जो डीएनए है, डीएनए विल precipitate out। clear। so I am going to repeat this, what you need DNA for your experiment। ठीक है। आपको डीएनए चाहिए। क्यों, आपने डीएनए को डीएनए में से कौन सी निकालनी है, अपने डिजायर्ड जीन निकालनी है। सो सोर्सेज कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी प्लांट, फंगस, बैक्टीरिया और एनिमल। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये किसी का स्ट्रक्चर जो है ये डीएनए है। डीएनए हमेशा न्यूक्लियस में पड़ा होता है, और न्यूक्लियस के बाद क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो सेल है, सेल का स्ट्रक्चर जो है, सेल के बाहर क्या पड़ी है, सेल वॉल। सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सेल वॉल को हमने यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ से डीएनए लेके बाहर आना है। ठीक है। सो इसलिए आप सबसे पहले ये वाला गेट जो है इसको तोड़ोगे। अब ये जो गेट है ये कैसे तोड़ना है, अगर तो वो प्लांट सेल है तो उसको डाइजेस्ट कराना है सेल्यूलोज के साथ। अगर वो फंगल सेल है उसको डाइजेस्ट कराना है काइटिनेज। बैक्टीरियल सेल
जो है वो उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है. देन इट विल बी डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंड एनिमल्स दे डोंट हैव सेल वॉल. सो फर्स्टली वी विल डू द एंजाइम डाइजेशन टू ब्रेक सेल wall. After that we will change the osmolarity by dipping this material into the hypotonic solution. After that we will get the mixture of DNA, RNA and proteins. Then as we need only DNA, सिर्फ हमें DNA चाहिए, so we will digest these RNA and proteins with the help of RNA and protease. Then what you will get, you will get the pure preparation of this DNA. Now in this DNA what you will add, you will add chilled ethanol that will make the DNA to precipitate out. उससे क्या होगा कि DNA जो है वो बाहर को आ जाएगा. सो क्या होगा कि जो DNA है वो एक स्टिकी सा, जैसे एक स्टिकी सा एक वायर सी बन जाती है ना, जैसे म्यूकस होता है, उसको बोलते हैं. उसको हम ट्यूब में से विद द हेल्प ऑफ रॉड जो है वो निकाल सकते हैं. क्लियर. वो रॉड से क्या होगा कि वो एक लंबी तार सी बन जाएगी और वो बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पूलिंग ऑफ डीएनए. डीएनए पहले प्रेसिपिटेट करेगा, फिर आपने उसको ट्यूब में से निकाल लेना है, एंड दैट जो उसको निकालना है उसको एक नाम दिया हमने, दैट इज़ द स्पूलिंग. क्लियर. ये था आपका फर्स्ट वाला स्टेप, दैट इज़ आइसोलेशन ऑफ डीएनए. डीएनए आइसोलेट हो गया. ठीक है, मैं आपको ये दोबारा स्टेप दिखा देती हूँ कि डीएनए अब यहाँ से अपना आपने आइसोलेट कर लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपकी जीन है, मैंने जैसे आपको हमेशा एग्जांपल देती हूँ इंसुलिन की, वो आपकी ये पड़ी है, ये सारा डीएनए आ गया. डीएनए आपने लंबा सा निकाल लिया. ठीक है, जब डीएनए निकाला उसमें से जो डिज़ायर्ड जीन है वो ये पड़ी है. अब ये निकालनी है आपको. अब ये आपने किसकी हेल्प से निकालनी है? अब ये आपने निकालनी है विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस. क्लियर. अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस की अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह के होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस, 1, 2 एंड 3. बट हम जो अपनी टेक्नोलॉजी, हम बायोटेक्नोलॉजी में मेनली यूज़ करते हैं, दे आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस 2. एजिज, अगर एज हैं तो ऑब्वियसली एंजाइम्स हैं. मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली वीडियो में, कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस है, दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स. ठीक है, दे हेल्प टू कट द डीएनए. 3 तरह के हैं, 1, 2 एंड 3. सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं 2 वाले क्यों यूज़ किए जाते हैं? बिकॉज दे आर हाईली स्पेसिफिक, वेयर एज 1 एंड 3 आर नॉट. क्लियर. अब नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए कि ये मिले कहाँ से. एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ दिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस वर डिस्कवर कैसे हुए. जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस है, बेसिकली ये डिस्कवर कैसे हुए, ये मिले फ्रॉम बैक्टीरिया. क्लियर. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया है. जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया पे वायरसेस जो होते हैं वो अटैक करते हैं. जब वायरसेस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं तो हम उनको बोलते हैं, दे आर कॉल्ड बैक्टीरियोफाजिस. अब जब इसने इसको अटैक किया तो इसने अपना जो डीएनए है उसको अंदर इंसर्ट किया. ठीक है, अटैक करने के लिए इट विल इंसर्ट इट्स डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. ठीक है, अब जब इंसर्ट कर दिया, बैक्टीरिया ने अपने आप को बचाना है. ठीक है, अब जैसे हमारे को कोई भी फॉरेन पार्टिकल जब अटैक करता है तो हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, इट स्टार्ट सिंथेसाइजिंग एंटीबॉडीज. हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है. इसी तरह से जो बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम है, इट ऑल्सो गेट्स एक्टिवेटेड. उसका जो इम्यून सिस्टम है वो कैसे एक्टिवेट होता है? वो जब एक्टिवेट होता है तो उसमें प्रोडक्शन होती है एंजाइम्स की, that are called restriction endonucleases. They are called restriction endonucleases. जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस है, ये क्या करते हैं कि जब ये वायरस अंदर आता है, ये इस डीएनए को काट के इनकी फ्रेगमेंट्स बना देते हैं. ठीक है, सो दैट दे कैन नॉट एंट्री, तो चलो इन्होंने मार ली है, सो दैट दे कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल और दे कैन नॉट इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल. क्लियर है.
ये क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू रिपीट। सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस जो है वो हमें कहाँ से मिले, फ्रॉम बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है दे यूज देयर एंजाइम्स एज देयर डिफेंस मैकेनिज्म्स व्हेन वायरस अटैक्स, व्हेन दिस वायरस अटैक्स दिस बैक्टीरियल सेल और अपना इंसर्ट कर देता है डीएनए, तो क्या होता है कि ये जो डीएनए है इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या कर देते हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में क्या करते हैं, कट कर देते हैं, सो दैट इट गेट्स, सो इट कैन नॉट दिस इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड किल। किल तो होता ही नहीं क्योंकि वो लिविंग है ही नहीं। लिविंग वो कब होता है, जब वो होस्ट की मशीनरी यूज करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, लेकिन ये रेप्लिकेट करने से पहले ही इसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्लियर। Now this restriction endonucleases, the first restriction endonuclease was discovered was HIND2। ये मैं आपको सिखाऊंगी कि क्या है ये। फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज whose functioning on a specific DNA nucleotide sequence was isolated, but उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था it was characterized 5 years later। क्लियर। अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस होते हैं इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि दे कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 और 3 दे आर नॉट यूज बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफिक। ये इतने स्पेसिफिक नहीं होते, काटते तो हैं बट दे कट फ्रॉम, जहाँ पे काटना चाहिए उससे बहुत दूर काटते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस 2 है दे कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, ये इनकी स्पेशलिटी है। अब इनकी स्पेशलिटी जो है वो कैसे बनी, how they are very specific, actually they cut at specific sequence and that specific sequence they are called palindromes, अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होते हैं जिनको चाहे हम आगे से पढ़े पीछे से पढ़े दे आर सेम। फॉर एग्जाम्पल मैडम, ठीक है। अब मैडम को आप आगे से भी पढ़ लो मैडम ही पढ़ेगा, अगर आप पीछे से पढ़ोगे तभी मैडम ही रहेगा ये, ठीक है। इसी तरह से नितिन, ये सेम है। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें नहीं है कि ये मैडम ढूंढता है या नितिन ढूंढता है, ठीक है। तो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं व्हेन यू रीड इट फ्रॉम आइदर डायरेक्शन इट कैन बी रेड सेम पढ़े जाते हैं ये। दीज आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आंसर है कि मैम अगर ये वायरस के डीएनए को कट करते हैं तो ये अपने डीएनए को कट क्यों नहीं करते, अपने डीएनए को भी तो कट कर सकते हैं, ठीक है। बट ये अपने डीएनए को कट नहीं करते। ये अपने डीएनए को कट क्यों नहीं करते, बिकॉज जो इनका डीएनए होता है उन पे एंजाइम्स होते हैं, उन पे मिथाइल ग्रुप्स एक्चुअली पड़े होते हैं। दे हैव मिथाइल ग्रुप्स। जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है उस पर क्या एडिड है, मिथाइल ग्रुप विद द हेल्प ऑफ एंजाइम मिथाइल ट्रांसफिरेजिस। इसी वजह से जो इसका अपना डीएनए है बैक्टीरिया का, इट स्टेज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये खुद जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ये सिर्फ किसको काटता है, ये सिर्फ काटता है वायरस के डीएनए को। एंड दिस इज कॉल्ड, इसको एक नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड होस्ट कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, होस्ट कंट्रोल्ड मॉडिफिकेशन। क्लियर। जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए है इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप्स ऑन इट्स ओन डीएनए, वेयर एज इट ओनली कट्स द डीएनए ऑफ द virus as its own DNA is protected from the action of REs or restriction endonucleases. It is called host controlled modification. Clear.
नाउ दीज अगर हम बात करें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, सो देर आर इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एज इट restricts the entry of viral DNA, and second one is endonuclease. So there are based on the presence of based on the class of enzymes called nucleases. Nucleases are of two types, exonuclease and endonuclease. जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए, ये डीएनए है. एक्सोन्यूक्लियस क्या होते हैं? जो यहाँ से कट लगाते हैं साइड से, या यहाँ से लगा दिया कट, दीज आर एक्सोन्यूक्लियस. एंडो मीन्स अंदर, एंडो मीन्स अंदर से, ठीक है. कहीं से भी कट लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, अंदर से कहीं से भी लगा दिया कट, दैट इज एंडोन्यूक्लियस. सो मेरे कहने का मतलब है, या मेरा ये पॉइंट समझाने का मतलब ये है कि अगर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, अगर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं वायरल डीएनए को, वायरल डीएनए की मल्टीप्लिकेशन को, तो वो कैसे करते हैं? बाय अटैकिंग फ्रॉम इनसाइड ऑफ डीएनए. अंदर से कट मारते हैं, अंदर से अटैक करते हैं, बाहर से नहीं करते. जो बाहर से करते हैं दे आर कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियसिस, जो अंदर से करते हैं दे आर कॉल्ड एंडोन्यूक्लियसिस. ठीक है जी. सो देयर इज वन दिस, एक तो हिंड3 हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट एंजाइम है. सेकेंड वन इज EcoR1. उसमें से EcoR1 इट कम्स फ्रॉम दिस एस्चेरिचिया कोलाई, एंड जो EcoR1 है इट ड्राइव्स फ्रॉम द नेम, इट हैज़ अ स्ट्रेन नेम दैट इज RY13. जो these are the genus species and R is derived from the name of strain. इसी तरह जो हिंड3 है it has been isolated from Haemophilus species. So there are different species. So till then what we have read the isolation. Clear? Isolation के बाद we discuss the restriction एंडोन्यूक्लियसिस दैट आर वेरी हेल्पफुल एंजाइम इन बायोटेक्नोलॉजी. सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में वो कौन से हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, जिसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर्स. सो दीज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया. Now this bacteria they use this enzyme as their defense mechanisms. So when the virus attacks the bacteria, so these restriction endonucleases, they cut the viral DNA and they don't let this virus to propagate inside the bacterial cell. Clear? And secondly, its own DNA is protected from the action of restriction endonucleases because of the presence of methyl group on its DNA, and this is called host controlled modification. Now the one more important thing, that there are three restriction endonucleases, 1, 2 and 3, but restriction endonucleases 2 are mainly used in this genetic engineering techniques because they are highly specific and they only recognize and act on the sequences called palindromic sequences. And palindromic sequences, these are the sequences that when we read it from either side, it is they are read in the same direction. अगर उसको आगे से दोनों, पीछे से दोनों जगह से पढ़ो तो they are same. क्लियर? सो ये जो है यहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस. क्लियर?